तेलंगाना असेंबली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर की तरक्की, ट्रैफिक मसाइल और दीगर कई अहम मसाइल पर रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबे किए हैं। और उसके साथ ही साथ मैंने पुराने शहर की तरक्की के ताल्लुक से भी आपसे अपनी तकरीर में कहा था कि रोड वाइडनिंग के लिए आज हम देखते हैं कि शहर में हर जगह पे ट्रैफिक जैम्स है। और नया एक मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि हैदराबाद के ताल्लुक से एक मीटिंग बुलाने के लिए, ताकि शहर के सारे एमएलएज अपने तजावीज़ रख सकते हैं, जिसके ज़रिए बोल सकते हैं कि हम देख रहे हैं सर कि वेरेवर वी वांट टू कम्यूट देयर इज सो मच ऑफ ट्रैफिक जैम्स, फॉर आवर्स एंड आवर्स वी आर गेटिंग स्टक इन द ट्रैफिक. We need to create some alternate roads, parallel roads, underpasses, flyovers, metro train, bus rapid transit system. And moreover, sir, this traffic congestion is also causing lot of pollution. तो इस ताल्लुक से भी मैंने अपनी तकरीर में कहा, कोई जवाब नहीं मिला। और मुझे बेहद खुशी हुई और होती है सबसे पहले कि चीफ मिनिस्टर साहब ने नौजवान नस्ल को ड्रग्स की लानत के जरिए तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था कि ड्रग्स पे हम करेंगे। तो मैंने अपनी तकरीर में ये बात भी कही थी कि ड्रग्स को रोकने के लिए जो इंटीरियर एरियाज हैं, जैसे स्लम्स हैं, सो वी कैन हैव सम आउटपोस्ट, पुलिस आउटपोस्ट ओवर देयर सर, because that is very important. Usually these drug menace and this ganja and all these things are happening in the poorest of the poorest localities and in the slums. So at least if we have an outpost and checking, and also we need to check all the pan shops, sir, pan dabbas jo hai schools ke paas mein, unko bhi we need to regulate, so that is not is happening, sir. Lot of youth are getting spoiled with this, sir. Sir, I have also spoken and I have been repeatedly speaking about, and Honorable CM Saab also knows about this. This is an issue regarding the fruit market, sir. So fruit market, sir, zamane se main bol raha hu, sir. Sir, I have no, without any hesitation, I would say, sir. Sir, when I spoke in the assembly before the election, general elections of these general elections, sir, then the Chief Minister KCR Saab had said, Akbar Saab, food market de denge, kar denge. Sir, he announced that he'll give the temporary fruit market there, and at the same time he issued a GO, announced, and then uske baad mein kya kare, sir? Uske baad mein लोगों को कोर्ट में भी जाए, एक तरफ वो काम करते थे, दूसरी तरफ से रुकाते थे। तो ऐसी काम करें सर कि वो फ्रूट मार्केट नहीं हुआ। वो चीफ में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के एश्योरेंस पे वो सारे फ्रूट मार्केट के लोगों ने करोड़ ऑफ रुपीस आपस में जमा करके दुकानें बना लिए, शॉप बना लिए, सर कुछ भी नहीं हुआ, सर। एंड ऑल्सो आई हैड वेलकम दिस इंटीग्रेटेड एजुकेशनल कैंपस, सर, एंड इन दैट आई हैड प्रपोज दैट के please relax the regulation of 25 acres for this integrated educational campus as far as Hyderabad city is concerned, sir. Sir, we do not have ample space over here. We cannot take the school's construction. And I had given a good suggestion, sir. I said that there are many educational campuses in the city, sir. In the city, existing educational campuses, which the extent of the land in those campuses are more than 10 acres, 15 acres. We can ask the Hyderabad collector to give a proposal and identify these educational campuses, existing educational campuses of more than 10 acres. And the government can, take up this and have a plan, and we can take integrated campuses in these educational campuses, sir. Sir, I have also requested for land use जो change करने के लिए फलकनुमा में, sir, ये educational campus के लिए, अगर आप वहाँ पे फलकनुमा में 2 bedroom दिए थे, sir, अगर उसको लैंड यूज अगर आप चेंज कर देंगे तो वहां पर भी वो आ सकता है। बहुत सारे मुद्दे उठाए, कुछ कम, पूरा बजट का मामला पूरा यहाँ ही प्रस्ताव किए, मगर उनको जितना पकड़ है हैदराबाद शहर में और किसी को नहीं है, क्योंकि उनके पैदाशी हैदराबाद में गली गली उनको पता है, हर गली में कौन सी ज़रूरत है, कौन सी जाति का ज़रूरत क्या है, उनका सब कुछ पता है। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। साथ साथ में हम लोग और कुछ काम किए, हमारे अकबर साहब ने कन्वीनियंटली भूल गए। गौलीगुड़ा से लेकर चंद्रायन गुटे तक मेट्रो भी मैं दे चुका हूं, और फ्लाईओवर का मैं अकबर साहब ने पेंडिंग था, वो फ्लाईओवर का भी हम इनाग्रेट किए, और मिरालम टैंकी के भी फ्लाईओवर ब्रिज
बैंगलोर हाईवे से लेके पीवी नरसिंह राव हाईवे तक अभी नया प्लानिंग्स बना रहे हैं, अकबर साहब बोलने से वो भी किए। चंचलगुड़ा चंद्रायन गुट्टा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी हम लोग दिए, और रोड वाइडनिंग के लिए भी 100 करोड़ रुपए असद साहब ने कहा तो 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी मंजूर किए, 200 मंजूर किए, 100 करोड़ तो दे दिए। पिछले कभी भी ओल्ड सिटी में जो भी है कागजों में दिखते थे, मगर मैं यही बात कहा, यहाँ कहा और बाहर भी कहा, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ये ओरिजिनल सिटी अपना शान है, शान को बचाने के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं हटते। और दूसरी बात रहा जो बजट में माइनॉरिटीज के लिए जो एलोकेशंस के, इसके बारे में बहुत सारे चीज़ों में थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारे भट्टी साहब ने 2,91,000 प्लस करोड़ बजट कुछ उम्मीद लेकर बजट प्लान किए थे, मगर इस बार हिंदुस्तान में नहीं पूरा दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, थोड़ा कम हो गया, इसीलिए हर चीज़ में कुछ कम हो गया। वो बजट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और बोलने वाले उसके बारे में, और हैदराबाद ट्रैफिक के बारे में थोड़ा हम लोग सब सोचना है, क्योंकि जितना भी फ्लाईओवर बनाओ, जितना भी अंडरग्राउंड ये बनाओ, सरफेस में बनाओ, फ्लाईओवर भी बनाओ, मेट्रो भी बनाओ, ये ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग कंटिन्यूसली हम कंसल्ट कर रहे हैं मेट्रो एक्सपेंशन के लिए, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के लिए, इसके बारे में। इसीलिए बार बार हमको दिल्ली जाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर ये एक अलार्मिंग मूवमेंट ऐसा है कि हैदराबाद में हर दिन 1600 गाड़ियां रोड पे आ रहा है। सिंगापुर में आपको पता है, एक गाड़ी नया खरीदना है तो दूसरे गाड़ी को सरेंडर तो भी करना नहीं है, तो एक गाड़ी खरीदे तो खरीदने के पैसे जितना हो रहा है उससे डबल सरकार को पैसे देना पड़ रहा है टैक्स में। मगर यहाँ पर तो ऐसा खुला मैदान छोड़ दिया हैदराबाद शहर में, तो हर दिन 1600 गाड़ियां, नया गाड़ियां रोड पे आ रहे हैं। इसका तो, इसके लिए तो हम लोग सब एक जगह में बैठकर सोचना है, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना। गाड़ी मत खरीदो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी खरीदो तो मुझे टैक्स मिलेगा और वो टैक्स से मैं वेलफेयर काम करने वाला हूँ, मगर ये हैदराबाद ट्रैफिक